Good morning. I am Sachin Pandey and we are going to study physics. कल हमने फिजिक्स करी थी, लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसका इंट्रोडक्शन कल किया था। उसके आगे हम आज पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कल हमने पढ़ा था। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी पॉलिश्ड सरफेस। अगर लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है, पॉलिश्ड सरफेस पे, तो वो बाउंस बैक होती है और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट टर्म इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, in this diagram AO is incident ray and this arrow represents the direction of ray of light. Means AO is incident ray and this arrow represents direction. AO यहाँ पे incident ray जो कि फॉल हो रहा है पॉलिश्ड सरफेस या मिरर। So here incident ray is E. ये को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? Any ray which falls on reflecting surface। कोई भी रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होती है वो होती है इंसिडेंट रे। द सेकेंड वन इज reflected ray। When incident ray falls on any polished surface, it bounces back and the bouncing back of light is called reflection, and the ray which bounces back after reflection is called reflected ray। Here in this diagram OB is reflected ray। OB is reflected ray। Any ray which is bounced back by the reflecting surface is called reflected ray। Here OB is reflected ray and this arrow represents the direction of reflected। The next and third point is point of incidence। Point of incidence is a point on reflecting surface, एक point reflecting surface on which incident ray falls। It's called point of incidence। Here O is called point of incidence। Fourth, normal। Normal means a perpendicular line drawn to reflecting surface। इस reflecting surface के perpendicular एक line draw करते हैं at point of incidence। Point of incidence, this is called normal। In this diagram MO or OM is normal। Fifth, angle of incidence, angle I। What is angle of incidence? The angle between normal and incident ray is called angle of incidence। Here AO is incident ray and MO is normal, so the angle between AO and MO, which can be written as angle AOM, this is called angle of incidence।
And the next and last one is angle of reflection, angle R. Angle of reflection means the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. Means the angle between OM and OB is called angle of reflection. In this diagram, this angle is angle of reflection, which can be represented by angle MOB. These are few terms related to reflection of light. यहाँ पे कुछ टर्म्स हम पढ़ रहे थे जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड था। पहला था इंसिडेंट, जो रे फॉल करती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। एनी रे which falls on reflecting surface is called incident ray. In this diagram, AOH incident. नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो भी लाइट बाहर आती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको बोलते हैं, मींस रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे बाहर आती है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मींस अ रे कमिंग बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इन दिस डायग्राम OB इज रिफ्लेक्टेड। जो भी रे रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पे इंसिडेंट रे फॉल होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मींस एनी पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच incident ray falls is called point of incidence. नॉर्मल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन जो कि किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि मिरर या जो भी गिवन है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दे वो भी कहां पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। And you have already learned in your previous classes about reflection, law of reflection. So let's read on laws of reflection. There are two laws of reflection. The first one is angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence हमेशा angle of reflection के इक्वल होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो। मींस रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दोनों ही कंडीशन में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है इन ऑल मिरर्स। जहां पे रिफ्लेक्शन होगी वो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो। द फर्स्ट law of reflection states that angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence हमेशा angle of reflection के equal होता है। And the second is incident ray reflected ray and normal
incidence all lie in the same. Means अगर suppose this is a mirror, this is point of incidence, this is reflected ray, this is normal. So always angle I is equal to angle I, and this incident ray, this normal and this reflected ray, all three lie in the same. Suppose a case, if incident ray coincides with normal, अगर हम किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली लाइट को इंसिडेंट करें 90 डिग्री पे जो नॉर्मल है उसी पे लाइट को इंसिडेंट करें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल हो गया 0, मींस एंगल I here is equal to 0 और एंगल R भी कितना होगा 0, मींस लाइट जिस पास से आई है उसी पास से मीन्स अगर हम नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कराते हैं इंसिडेंट रे को तो रिफ्लेक्टेड रे भी वापस उसी पाथ पे रिटर्न होगा। ये एक स्पेशल केस था। तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट वन इज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R एंड द सेकंड वन इज इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same. अब बात करते हैं इमेज की। मिरर में जब हम अपना फेस देखते हैं तो हमें हमारी इमेज दिखाई देती है। अब इमेजेस भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। यहाँ पे मैं 2 टाइप्स की इमेज पढ़ी है। द फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड द सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। Images are of 2 types. The first one is real image and the second one is virtual image. इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट एक बार फिर देखते हैं कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज वो इमेज होती है जो कि जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करते हैं किसी पॉइंट पे, उसको बोलते हैं मिरर। कोई मिरर है उसमें इंसिडेंट रेज आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे निकली, रिफ्लेक्टेड रे निकलने के बाद अगर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, मतलब जाके किसी पॉइंट पे वो मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे, उस केस में रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे प्रोजेक्टर से जो इमेज फॉर्म होती है वॉल्स ऑफ स्क्रीन पे, वो रियल है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक्चुअली मीट नहीं करती है किसी पॉइंट पे, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे मिल रही होगी, उस केस में वर्चुअल इमेज। एग्जांपल, image formed in a plane mirror is an example of virtual image। तो देखते हैं इसको।
तो बात करते हैं रियल इमेज की। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि रियल इमेज क्या होता है। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट एक्चुअली मीट करती है किसी पॉइंट पे, जाके मिलती है किसी पॉइंट पे, वहां पे जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by the actual intersection of light, वो इमेज जो कि फॉर्म हो रही है एक्चुअल इंटरसेक्शन से लाइट रे से आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज इमेज। सेकंड पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जांपल, इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्टर ऑन अ वॉल। तो अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ये रियल इमेज की डेफिनेशन है और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अभी आप डिफरेंस देखेंगे। इसमें इन्वर्टेड हो रही है इमेज, उसमें इरेक्ट होगी। इसमें हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, उसमें हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्चुअल इमेज या वर्चुअल इमेज देखते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज when the rays of light do not meet or intersect, जब लाइट रे इंटरसेक्ट या मीट नहीं करती, तब एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो मीट नहीं करती एक्चुअली, बट दे अपीयर टू मीट, ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही है, then the image so formed is known as virtual image। तो ऐसी इमेज जो बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, which cannot be obtained on screen। Image formed by plane mirror is an example of virtual image। So अब बात करते हैं कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। तो रियल इमेज can be obtained on screen, but virtual image cannot be obtained on screen. Real image is always inverted, but virtual image is always erect. The image formed by actual intersection of light rays after reflection or refraction is called real image, and when the light rays do not meet or intersect actually after reflection or refraction, they appear to intersect, then the image so formed is called virtual image। And the example of virtual image is the image formed by projector on the wall is an example of virtual image। Sorry, real image, the image formed by projector on a wall is example of real image, and the image formed by plane mirror is example of virtual image। So there are 3 points which you can write if the question is write 3 difference between real image and real image and virtual image। First, in real image after reflection or refraction actually intersect, and in virtual image do not intersect, only appear to intersect। It can be obtained on screen real, it cannot be obtained on screen। It is always inverted real image and it is always erect virtual image। एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप। Image formed by projector on wall is an example of real image, and image formed by plane mirror is example of virtual image। तो अभी प्लेन मिरर के बारे में सभी जानते हैं। हम अपने घरों में या सैलून्स में और सब जगहों पे प्लेन मिरर देखते हैं और डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है और उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं,
ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है देखते हैं किस तरीके से। पहले हम रे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे एंड आफ्टर दैट उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो सपोज अ मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर represented by m dash. This is m, this is m dash. This is a plane mirror. This surface is reflecting surface and this surface is polished surface. The polished surface is this surface. This one is polished. This is an imaginary line. This is object A, which is placed in front of plane mirror. This is incident ray AO. This one is reflected ray. And from law of reflection, angle I must be equal to angle I. Angle I must be equal to angle R. This is incident ray AO and this is reflected ray. Angle I is always equal to angle R. Now this is incident ray and this is reflected ray. Because here angle of incidence, this is normal to the reflecting surface. So angle of incidence is 0. Therefore angle of reflection is also 0. So this light when incident normally to the reflecting surface, it bounces back to the same. जब ये इस पे 90 डिग्री एंगल के साथ इंसिडेंट होगा तो वापस इसी पे जाएगा। अब ये दोनों अगर हम उसको आगे इंसिडेंट करें तो ये दोनों कहीं नहीं होंगे, ऐसा अपीयर होगा। ऐसा अपीयर होगा कि ये पीछे किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है। दिस इज ए डैश, AB is object and A dash B dash is image. So the image actually light ray after reflection, the first light ray is this and the second ray this. अगर हम इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करते जाएं तो ये आगे कहीं नहीं होंगे, बट ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि पीछे के किसी कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जिस पॉइंट पे ये मिली हो। ऐसा अपीयर होगा कि कोई पॉइंट है जहां से ये दोनों लाइटें निकल रही हैं, ऐसा सिर्फ अपीयर हो, एक्चुअली नहीं मीट कर रही। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल। और अगर ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करती तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होती वो होती है रियली। बट यहाँ पे लाइट एक्चुअली नहीं मीट कर रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि मीट कर रही है, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है, वर्चुअल। अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं कर रहे। इट मीन्स form as virtual and ये हमेशा याद रखना है कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इरेक्ट में सीधी, अगर आप किसी चीज की इमेज मिरर में, प्लेन मिरर में देखते हो, अपना फेस देखते हो तो सीधा दिखाई देगा। सेकेंड वन, size of image is equal to size of object। इमेज की और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है। दैट इज इन दिस केस वी कैन से दैट ए बी इक्वल होगा ए डैश बी। जितना अगर आप अपना फेस देखते हो तो जितना बड़ा आपका फेस है उतना ही बड़ा दिखता है आपको प्लेन मिरर में, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का दिखता है प्लेन मिरर में, बड़ा या छोटा नहीं दिखता। ये हो गई सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन। थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी दिस, और ये डिस्टेंस जो है ये मिरर के पीछे होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मीन्स अगर ये मिरर है, इससे 5 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ इमेज फॉर्म होगी। मिरर के 5 सेंटीमीटर फ्रंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर से 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है तो जो डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स सपोज दिस इज द मिरर एंड दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 3 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज आल्सो 3। Therefore, the distance between object and image is 6 centimeter. And the fourth and last one, the image is laterally inverted. Laterally inverted means lateral inversion के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लेफ्ट अपीयर्स राइट। अगर आप मिरर में अपना राइट हैंड रेज करोगे तो मिरर में वो लेफ्ट हैंड रेज करेगा। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो मिरर में वो राइट हैंड रेज करेगा। इट मींस दैट लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। दिस phenomenon is called lateral inversion and the image formed in plane mirror is laterally inverted। जैसा कि एम्बुलेंस पे आप देखते हैं कि ऐसे उल्टा लिखा होता है ताकि मिरर में वो सीधा दिखाई दे, या बी अगर लिख के मिरर के सामने लेके जाओ तो उल्टा भी लिखा होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।